qu'un petit refrain d'autrefois. हमारे लिए बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही यूनिक स्टोरी सुनने को मिली। आई बिलीव कि दिस हैज़ बीन द फर्स्ट इंटरेक्शन जो इस लेवल पे ऑनेस्ट इंटरेक्शन रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, और थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट विद अस। I have been in this process for 10 years. बहुत से लोगों के जहन में आता होगा कि 10 साल वेस्ट कर दिए, कुछ और कर लिया होता। मेरे लिए एग्ज़ाम एक ऐसी जिद बन गया था कि जो अगर पूरी ना भी होती, लेकिन मुझे ये तसल्ली चाहिए थी कि मैंने कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा। लेकिन मेरी सक्सेस के पीछे अगर मुझे क्रेडिट देना हो किसी सर को, तो सिर्फ ये सर है जिसने मुझे सिखाया कि मेहनत कैसे लिखे। बस इसने ये एग्ज़ाम आपको कोई क्वालिफाई नहीं करा सकता, ये थर्स्ट आपको कोई दे नहीं सकता है जो बच्चे में अंदर से आती है। तो हम फिर आपको वो चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन करना तो आपको खुद ही है। जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो मुझे आज भी याद है, फर्स्ट जब मैंने मॉक लिखा, अब इतना यकीन करो मेरा, ये सर जो मेरे सामने बैठे हैं मुझे इनका नाम भी पता नहीं है। इतना मैं इनके जो ये मुझे गाइड कर रहा था, इतना मैं उसमें खोया। मैंने आज तक इसको कभी नाम नहीं पूछा है, क्योंकि मुझे बस इतना होता था, जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि रास्ता कोई और था। दिल से हमेशा अपने टीचर्स की, इस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स को रेस्पेक्ट करता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल ज़ीरो से वो एक ऑफिसर बन गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं ऑनली कैंडिडेट वो हूँ जिसको बाप ने 2 महीने बात नहीं, क्योंकि मैंने रेलवे सिलेक्शन करके भी छोड़ी। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन करके भी उनको माना नहीं ज्वाइन करना। फिर फाइनली जब डीसी ऑफिस से कॉल आई कि आपको वेरिफिकेशन करनी है, मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया है, तो मुझे पुलिस स्टेशन लिया गया वेरिफिकेशन करने के लिए। Warm greetings to our aspiring students, dedicated teachers, our respected chairman, and everyone here today. I am excited to stand before you as we start this inspiring journey together. Welcome to a seminar created to spark dreams and show you new possibilities. Today is not just another day, it's a day full of hope, inspiration, and the chance to pursue greatness. In the hours ahead, you'll hear about the challenges our speakers faced and the rewards of making a difference in the world. Civil service isn't just a job, it's a commitment to serving others and improving our nation. I encourage you to listen, ask questions, and connect with our speakers. They are here to guide you and light the path for those who want to follow in their footsteps. I'd also like to thank our chairman, Mr. Rohan Jilani, for making this event possible. His support has helped us bring this inspiring opportunity to all of you. So let's begin this journey together. I hope you find the motivation you need and the strength to follow a career that can truly change lives. Before we begin, I'd like to introduce Quintessence, a guiding light in civil service coaching. Quintessence has worked to bring fresh perspectives and open doors in this field. With the recent JKS 2023 results, we are grateful to celebrate the success of 23 candidates. This achievement reflects the center's dedication to supporting students not only in knowledge but in building values that matter. Now, I'd like to invite our chairman, Mr. Rohan Jilani, to join us in felicitating our distinguished guests. Mr. Sajad Ahmed Loon. And Mrs. Nashra Batul. खुशी होगी अगर मेरे बदले आप में I'd like to call on stage Mr. Tehlil Shah to open the seminar.
Mr. Tehlil Shah is more than a teacher, he's a mentor. He teaches us not only academics but also life lessons, and he believes in joining civil services for the right reasons. His message speaks to everyone who wants to serve with purpose. Please join me in giving a warm applause to Mr. Tehlil sir. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। पहले तो डायरेक्टली हम ये सेशन में फोकस जो हमारा मेनली है, इट्स नॉट लाइक कि हमने कुछ करके ये सिलेक्शंस यहाँ पर आपको दिखानी है। यहाँ पर बेसिक मकसद है कि इनकी जो जर्नी रही है, जो इन्होंने बेसिकली बहुत सालों से काम किया है इस पर, एक ट्यूशन सेंटर क्या कर सकता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट या टीचर क्या कर सकता है, वो आपको आपकी फाउंडेशन जो आपकी तैयार है पहले से, उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकता है एग्ज़ाम की नीड्स के हिसाब से। पर काम तो आपको खुद ही करना है। कोई भी आपको ज़ीरो से लेकर सिलेक्शन तक ले जा नहीं सकता, ना हम ले जा सकते हैं, ना कोई भी इंस्टीट्यूट ले जा सकता है। एक असल में इनकी खुद की मेहनत होती है, जो जहाँ पर फिर शॉर्ट में उसको कस्टमाइज़ करके फिर एग्ज़ाम की नीड्स के हिसाब से हम वहाँ तक उनको पहुँचा सकते हैं। बेसिकली काम तो खुद ही करना है। जैसे मैं आपको बार बार क्लास में भी कहता रहता हूँ दैट ऑल द हार्ड वर्क हैज़ टू बी डन इन एडवांस, और वो एडवांस में अभी करना है आपको। देन ओनली हम टीचर्स या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या गाइड आपको क्या कर सकते हैं, उस पूरी मेहनत को जो आपने कर रखी है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम की नीड्स के हिसाब से। अब यहाँ पर दो ऐसी एग्जांपल्स है आपके सामने जो मैं आपको बता सकता हूँ। इन्होंने जो ओवर टाइम मेहनत की है सालों साल, ये इस बात की गवाही देता है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज से क्वालिफाई नहीं होता, बल्कि रेजिलियंस से क्वालिफाई होता है। ये इनकी जो रेजिलियंस रही है पिछले 5 साल से, पिछले 6 साल से, इसी एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देना, बार बार फेलियर देखना, फिर से उठना, फिर से फेलियर देखना, फिर से उठना, यही है असल में जो इस एग्ज़ाम की नीड है। बहुत ही कम लोग हैं जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। इस साल भी हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी सारे क्वालिफाई, मगर आपके सामने वो एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई, पहली बार फेल होकर, दूसरी बार फेल होकर, तीसरी बार फेल होकर, तब जाके और बार बार उठना और इस पूरी जर्नी में इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है ये। और ये उसकी प्राइम एग्जाम्पल है आपके सामने। जब ये हमारे पास पहली बार आए थे तो यू कुड सी कि स्टूडेंट्स जो चाहते हैं गाइडेंस, उनमें वो थर्स्ट होती है बेसिकली। आई रिमेंबर दोज टाइम्स कि मैं अंदर होता था, नशरा यूज्ड टू कम अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, तो दे यूज्ड टू वेट कि सर हमें कुछ बता दो, हमारा लास्ट पे बेसिकली लास्ट अटेम्प्ट में इतने मार्क्स कम हो रहे हैं, जस्ट टेल अस समथिंग जो हम डिफरेंटली कर सकते हैं इस बार, है ना। तो दैट थर्स्ट हैज़ टू कम इन, और ये फ्रॉम विद इन आना चाहिए, ये कोई दे नहीं सकता आपको, ये आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है। तो कोई, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये एग्ज़ाम आपको कोई क्वालिफाई नहीं करा सकता, ये थर्स्ट आपको कोई दे नहीं सकता है, जो बच्चे में अंदर से आती है कि सर मुझे बताइए इस बार मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूँ, तो वो अंदर से ही आता है। ये सिलेक्शन आपकी खुद की होती है, ये थर्स्ट आपकी खुद की होती है। तो हम फिर आपको वो चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन करना तो आपको खुद ही है। तो ये प्राइम एग्जाम्पल है इसकी। और मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे कि मैंने इन दोनों से जैसे बात भी की या जब इंटरव्यू भी हुआ इनका, तो बोथ ऑफ देम सेड दैट व्हाई दे स्टार्टेड सिविल सर्विसेज इज बिकॉज दे वांट टू सर्व द सोसाइटी, और नाउ इज द टाइम टू सर्व द सोसाइटी। एंड नाउ यू हैव ऑलरेडी बीन क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट ऑफ दिस एग्जाम टू बीइंग अ लीडर इन एक्शन। नाउ इज़ द टाइम जब हम देखना चाहेंगे कि आप सोसाइटी को सर्व करें, और जहाँ पर हमें ऐसे ऑफिसर्स की जिन्होंने इतनी रेजिलियंस और इतनी हार्डवर्क के बाद ये सिलेक्शन अचीव किया, वो ये वो कभी ना भूले इस बात को कि हमने ये शुरू क्यों किया था। और वो रीज़न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आप लोगों की ज़रूरत है, और हम चाहेंगे कि आप इसमें अब वो योगदान दे या कंट्रीब्यूशन दे जिसकी हमें कश्मीर में काफ़ी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि वो सहूलतें पैदा हो हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, जो अब आपसे आ सकती है। तो आपने जितना लेना था वो आपने ले लिया, अब वापस देने की बात है, अब आपको वापस देना है, चाहे एस्पिरेंट्स की बात, स्टूडेंट्स की बात, या आम कश्मीरी की बात, अब वापस देने का टाइम है। तो हम देखते रहेंगे, वी वुड वॉच यू कि कैसे आप हाउ वुड यू बी एन एजेंट ऑफ चेंज। ऐसा ना हो जैसे कि मैं परसों भी क्लास में कह रहा था दैट बेसिकली जब आप कोशिश करते हैं, हम पिछले 5-6 साल से कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का सिलेक्शन बढ़ जाए, या टोटल जो क्वांटम है यहाँ से जो बच्चे निकल रहे थे उसके लिए हम मेहनत करें, तो वो हम देख भी रहे हैं थोड़ा बहुत। मगर एक चीज़ के लिए जो मैं क्लास में भी परसों बोल रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ विद द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर गेटिंग क्वालिफाइड, बिकॉज मैं जो एक्सपीरियंस है मेरा कि जब जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स है, जिन्हें मेहनत करी है, रेजिलियंस दिखाई है अपनी, जो कोर में उनका कोर ऑनेस्ट है,
वो ऐसे लोग नहीं है जो किसी और मकसद के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन भी दुरुस्त है। वो लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और वो पिछले कुछ टाइम से मैं देख नहीं रहा था। नाउ इनकी सिलेक्शन से मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने पहली बार इस पूरे सिलेक्शन लिस्ट में जब मैंने आज तक एक ही को मैसेज की है, एंड दैट इज़ नशरा, कि आई एम वेरी हैप्पी विद योर क्वालिफिकेशन एंड योर स्ट्रगल विल बी रिमेंबर्ड। ठीक है ना। शी इज़ ऑलरेडी मैरिड, उनके 2 किड्स है, शी हैज़ अ वेरी वंडरफुल एंड सपोर्टिंग हस्बैंड। तो बहुत बहुत लंबा स्ट्रगल, एंड सजाद का भी बहुत लंबा स्ट्रगल। सजाद यूज्ड टू कम इन एंड अ पर्सन जिसको थर्स्ट था इस चीज़ का कि सर हमारा टेस्ट टाइम पर हो, आंसर राइटिंग में एवेल्युएशन टाइम पर हो, उसमें नया और क्या ऐड कर सकते हैं, करंट अफेयर स्ट्रक्चरिंग कैसे ठीक कर सकते हैं, लिंक सेंटेंसेस कैसे डाल सकते हैं, और एग्जाम्पल फैक्ट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप में वो हर क्वेश्चन में आधा मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाए, 1 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाए। ओवर टाइम आपको 40-50 मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो आप कट ऑफ के ऊपर आ जाते हो। तो ये चीज़ इनका खुद का मेहनत है। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको पता नहीं होता वो सिलेक्शन के बाद करेंगे क्या। तो ये जैसे एक शायर ने भी कहा है, जो लौट आए कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें मंजिलों पे खबर हुई कि रास्ता कोई और था। उनको पता ही नहीं होती कि वो क्या कर रहे हैं। तो वेरी फ्यू पीपल नो दिस कि उन्होंने शुरू क्यों किया था, एंड दे स्टिक टू इट एंड जैसे कि मार्टिन लूथर ने कहा था, देयर इज ऑलवेज देयर इज द राइट टाइम टू डू द राइट थिंग ऑलवेज। हमेशा सही चीज़ करने का सही वक्त होता है, उसका कोई वक्त नहीं होता जिस वक्त करेंगे कोई सही चीज़। अभी वक्त है सही चीज़ करने का, और वो हम अब इंशाल्लाह इनसे देखेंगे वो एक एग्जाम्पल, एक प्राइम एग्जाम्पल बने लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, कि कैसे ये स्ट्रगल के थ्रू और रेजिलियंस के थ्रू यहाँ तक पहुँचे। तो आप में बम्बार्ड करना इनको क्वेश्चन से कि वो इनका बेसिक कॉज क्या था शुरू करने का, फिर प्री का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का, इस बार क्या डिफरेंट किया जिससे सिलेक्शन हुआ। बम्बार्ड देम विद क्वेश्चंस, और शायद आपको एक ऐसी बात पता चल जाए कि योर लाइफ वुड बी चेंज्ड। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for those inspiring words. Before inviting Mrs. Nashra on stage, I'd like to call someone who is a pillar of strength for Mrs. Nashra and whose unconditional support has made it possible for her to make her dreams come true. Please allow me to call on stage Mr. Zahir Aslam, the husband of Mrs. Nashra. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहलील सर का, रोमान सर का, बाकी क्विंटेंसेंस का, कि इन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया कि आप लोगों को बता सकें कि बेसिकली हमारी जर्नी कैसी रही। वो तो मेरी मिसेस आपको बता देंगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ऑनेस्ट रहो, क्योंकि आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो ये, या अपने लिए कर रहे हो, ना किसी को दिखाने के लिए कर रहे हो। ये करना है कि मैंने करना है। कल को आपको मतलब आप जिस वक्त जर्नी स्टार्ट ये करोगे, जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आपके दिमाग में सिर्फ ये रहना चाहिए कि मुझे करना है ये। और जब आप 1 आवर 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपके पास पूरे दिन में टाइम है, आप उसको यूटिलाइज़ करो, और यूटिलाइज़ ऑनेस्टली करो। ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं मम्मा को बोल रहा हूँ या फैमिली को बोल रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ 2 घंटे, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, ट्यूशन में कुछ नहीं। ट्यूशन में सबसे बड़ी जो आपको डायरेक्शन देगा वो आपके इंस्टीट्यूट्स देंगे। या तो घर में कोई हो आप जिसने मतलब क्वालिफाई किया हो, या कोई आपका फ्रेंड हो जिसने क्वालिफाई हो, और वो ऑनेस्ट रिव्यू दे दे आपको कि आपको प्रोसीड करना, अप्रोच कैसे करना है एग्ज़ाम को। नहीं तो सबसे बेस्ट गाइड होते हैं इंस्टीट्यूट, मतलब जो इन्होंने खुद पढ़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे वो कर दे। तो मेरा यही कहना है कि बाकी जर्नी तो आप ये सब देखें, बोलेंगे आपको कि करना कैसे। मेरा यही है कि आप डटे रहो, और आपका ये होना चाहिए कि नहीं मैंने करना है, होगा क्यों नहीं। नेगेटिविटी थॉट्स वो कभी अपने जहन से मतलब निकाल दो, समझो। तो बाकी अब एस्पायरेंट जो आपके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो खुद बोलेंगे इनकी जर्नी कैसी रही, इनका स्ट्रगल कैसा था। हमारी तरफ से तो सपोर्ट, आपको घर वालों ने सपोर्ट किया होगा, या कोई मदर फादर ब्रदर जो सिबलिंग्स वो सपोर्ट तो करेंगे। तो बाकी मेरा वही इनका सपोर्ट रहा था थोड़ा बहुत, मैं हर चीज़ में, पढ़ाई में हो, क्योंकि मैं खुद भी एस्पायरेंट रहा हूँ, 3 टाइम्स इंटरव्यू ड्रॉपर मैं भी रहा हूँ। मैंने अपनी वो इनको अपनी तरफ से वो बोला कि मैंने क्या, मुझ में कहाँ कमी रही, और इन्होंने वहाँ वो इम्प्रूव किया। फिर बाकियों ने भी इसकी हेल्प की, वो खुद ये बताएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।
Thank you, sir. Mrs. Nashra Batul has recently qualified for the KS exam with a rank of 20. She's here to share her journey and preparation. Let's give her a big round of applause as she takes the stage. Good morning. Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. तो सबसे पहले मैं अपने बारे में पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी क्विंटेसेंस क्लासेस को, तहलील सर को, रुमान सर को, कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ इंटरैक्ट कर सकूं, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, जो बातें मैंने दूसरों से सीखी हैं वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर सकूं। तो अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन तो आपने सुन ही लिया कि मेरे नशरा बतुल हूँ। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। मैंने इस बार KS क्वालिफाई किया है विद रैंक 20। दिस वॉज माई 4th अटैम्प्ट एंड 4th इंटरव्यू ऑल्सो। तो मैं भी कुछ दिन पहले तक आप लोगों की तरह एक डेस्परेट एस्पायरेंट थी। पॉइंट बीइंग कि आई कैन रिलेट टू एवरी इमोशन दैट यू गाइज आर फीलिंग और विल फील इन द फ्यूचर, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, सैडनेस हो, एंग्जाइटी हो, नर्वसनेस हो, एक्साइटमेंट हो। आई कैन टोटली रिलेट टू ऑल ऑफ देम। तो सबसे इससे पहले कि मैं इस बात पे आऊँ, अपने स्ट्रैटेजी वगैरह वो भी बाकी बातों पे, पहले 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी आप लोगों ने करनी है। वो पहली चीज़ है कि कमिटमेंट ये कि आपने ठान लेना है कि आपने करना है। इसी बात में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि KS इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मेरी स्टोरी सुन के बहुत से लोगों के जहन में शायद ये भी आता होगा, इन सर ने कहा 6 साल 8 साल, आई हैव बीन इन दिस प्रोसेस फॉर 10 years। बहुत से लोगों के जहन में आता होगा कि 10 साल वेस्ट कर दिए, कुछ और कर लिया होता। मेरे लिए एग्ज़ाम एक ऐसी ज़िद बन गया था कि जो अगर पूरी ना भी होती, लेकिन मुझे ये तसल्ली चाहिए थी कि मैंने कोई स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा। तो कमिटमेंट एक ज़रूरी है एंड इट शुड कम फ्रॉम विद इन। ये नहीं कि कोई दूसरा आपको बोल रहा है कि कर लो इसलिए आप कर रहे हो, ये इट शुड कम फ्रॉम विद इन। और दूसरी चीज़ है अवॉइड नेगेटिविटी, अवॉइड नेगेटिव पीपल, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल ओनली। स्पेशली ये जो आपका प्रिपरेशन का टाइम है, इस टाइम पे तो बिल्कुल भी आप नेगेटिविटी से दूर रहिए। बाकी इसके अलावा अब अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो देयर इज़ नो प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी। कोई ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पाथ है, आपने उस पर चलना है तो आपको एंड पे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें हर एक का अपना अपना तरीका होता है। कोई नोट मेकिंग में बिलीव करता है, कोई नहीं करता। किसी को एक्सटर्नल मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती। तो इसमें अगर हम देखें तो सेक्शन वाइज अगर बात करें तो सबसे पहले आपका टाइम। अक्सर लोगों की क्वेरी होती है कि कितने घंटे दिन में पढ़ा जाए, तो वो भी कोई फिक्स नहीं है कि इतने आवर्स आपने पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 24 आवर्स में से 14 आवर्स पढ़ रहे हैं, फिर भी आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता। आपका प्रोग्रेस है, द प्रोग्रेस यू मेक, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स। मैं अपना बताऊं कि मेरा ये रहता था कि आई वुड सेट डेली टारगेट्स। वो टारगेट मेरा 2 घंटे में ख़त्म हो रहा है, 6 घंटे में ख़त्म हो रहा है, 8 में ख़त्म हो रहा है या 10 में ख़त्म हो रहा है, वो मेरा गोल होता था। ये नहीं कि मैंने कितने घंटे किताबों के साथ बिताने हैं, वो मेरा गोल नहीं होता था। मैं अपनी बात करूं तो ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स आवर्स हैं कि हाँ 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है तो बस। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास मटेरियल। हमारे पास क्वालिटी मटेरियल बेतहाशा आज अवेलेबल होता है हमारे पास कंपाइल्ड फॉर्म में। दूसरे लोग हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए कंपाइल्ड फॉर्म में हमें मटेरियल जो है अवेलेबल होता है। उसके अलावा उसके साथ साथ आप लोग एक ये करें कि सप्लीमेंट्री तौर पर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। मैंने भी ज़्यादा टाइम पहले ये चीज़ शुरू नहीं की। न्यूज़पेपर को क्या होता है कि हम लोग एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट हो जाते हैं। हम उस पर दिन इन्वेस्ट कर देते हैं कि न्यूज़ पढ़नी है क्योंकि बोला गया है न्यूज़पेपर को आप अगर दिन का 1 घंटा मैक्सिमम न्यूज़पेपर के साथ स्पेंड करें और उसको भी ऐसे पढ़ें कि आप रिलेट करें उसको सब्जेक्ट के साथ। ऐसे नहीं कि इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको रिलेट करना है कि हाँ ये वाला टॉपिक मेरा फलानी सब्जेक्ट के फलानी टॉपिक से लिंक करता है। तो एज अ सप्लीमेंट आप न्यूज़पेपर को ट्रीट करें स्टडी मटेरियल में। उसके बाद तीसरी चीज़ अब जो स्ट्रैटेजी आती है, अगर मैं उसमें सेक्शन वाइज बात करूं
पहला तो आपका पीटी अभी शायद आगे आने वाला है, और पहला स्टेप जो होता है पीटी होता है। पीटी में हमारी जो है बहुत एग्जॉस्टिव स्टडी लगती है। पीटी में हमारे पास 2 सेक्शंस हैं, सबको पता है, जीएस होता है, सीसैट होता है। तो जीएस में तो आपको मतलब वो इंटेलिजेंट गेसिंग और नॉलेज का जो कॉम्बिनेशन वो सब तो आपने सीखा ही होगा क्लासेस में। सीसैट के बारे में भी है। सीसैट में सेक्शंस होते हैं, मैथ्स का पोर्शन होता है, मेंटल रीजनिंग वगैरह का होता है, मेंटल एबिलिटी का होता है, इंग्लिश का पोर्शन होता है। तो मेरा पर्सनल था कि मेरा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, मेरा रीजनिंग वगैरह में जो है थोड़ा सा होल्ड ठीक था कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में क्या हो जाता था कि मुझे अक्सर कन्फ्यूजन रहता था, 2 ऑप्शंस कुछ ऐसे लगते थे कि ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो मैं इंग्लिश को एंड में देखती थी कि इंग्लिश के सेक्शन को देखूं। तो सीसैट में मैंने बात की है, अक्सर जो साथी मेरे हुआ करते थे, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बच्चे ओवर अटेम्प्ट कर जाते हैं सीसैट को। मतलब आपके पास एक परसेंटेज है कि आपको 33% जो है क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तो 40-45% मुझे लगता है इनफ है, जिनमें आप श्योर हो कि मैं सिक्योर हो जाऊंगा। तो उतना मुझे लगता है कि वो काफ़ी अटेम्प्ट। लोग 80-90% सीटेट में क्यों अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, उससे मुझे लगता है कि उनका शायद नुकसान है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते थे जो 80-90% अटेम्प्ट करके आते थे, फिर सीसैट की वजह से जीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे पीटी। तो फिर अगर उसके बाद हम मेंस की बात करें, मेंस की जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी रही है, अब ऐसा नहीं है जैसा मैंने कहा कि कोई प्री डिफाइंड नहीं है, मेरा खुद का जो था मेंस जो है मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे एग्जामिनेशन का, इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है। इंटरव्यू जो है वो आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी रैंकिंग क्या रहती है। सिलेक्शन में मेन जो आपका रोल होता है मेरे ख्याल से वो मेंस का रहता है। मेंस में मटेरियल वगैरह तो खैर अगर ऐसा है कि आपके पास स्टडी मटेरियल का पूरा वो लिस्ट वगैरह वो अवेलेबल ऑनलाइन भी होता है, आपको गाइड भी यहाँ पे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। तो मेरा मेन रहेगा कि पहली चीज़ तो होती है कि प्रिपरेशन के दौरान आंसर राइटिंग पे आप लोग बहुत फोकस रखें। आपको अगर उसके लिए किसी मतलब आप अपने आंसर्स को इवेलुएट कराइए, जैसे कि मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट्स पे तो नहीं, लेकिन इस 4th अटेम्प्ट में मैंने यही क्विंटेसेंस से टेस्ट सीरीज़ जो ज्वाइन की थी, जिससे बहुत हेल्प मिलती है, सच में बहुत हेल्प मिलती है कि आपका जो नॉलेज होता है आप उसको बेटर स्ट्रक्चर कर पाते हैं, आप एक्सप्रेस बेटर कर पाते हैं, आपको पता होता है, क्योंकि हर टॉपिक जो आप पढ़ते हैं आप उस टॉपिक पे आपके पास 10 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या आप उस टॉपिक को 10 तरीके से आंसर कर सकते हैं, उसके लिए आपका माइंड ट्रेन हो जाता है। तो उसके लिए आपको इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होती है कि आपको कोई दूसरा बता रहा है कि नहीं इसमें ऐसे नहीं ऐसे आप बेटर लिख सकते थे, इसकी जगह आप ये पॉइंट और ऐड कर सकते थे, या ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था आप इसको माइनस कर सकते थे, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। आंसर राइटिंग के अलावा आप टॉपर्स कॉपीज़ जो हैं वो भी देख सकते हैं, उससे भी बहुत हेल्प मिलती है, उससे भी आइडिया मिल जाता है कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन की डिमांड को कैसे पूरा करना है। उसके अलावा अगर आप लोग न्यूज़पेपर तो मैंने बोला एज अ सप्लीमेंट, वो मेंस के लिए भी है कि आप अगर उसमें एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें डाटा ऐड कर सकते हैं। राइटिंग के दौरान जब आप मेंस में लिख रहे होते हैं वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होती है टाइम मैनेजमेंट, और वो टाइम मैनेजमेंट की तैयारी आपने पहले करनी होती है, एग्ज़ाम हॉल में नहीं। आप एक क्वेश्चन भी जो है मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। आप अगर एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग के दौरान फिर अंडरलाइनिंग वगैरह कि आप जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लिया, डाटा को ऐड कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लिया, वो चीज़ें प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो अच्छी, आप जो नॉलेज अटेन कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। आपसे अगर क्वेश्चन में व्हाट पूछा है आप हाउ नहीं लिख सकते हैं, आपसे अगर वाई पूछा है तो आप व्हाट नहीं लिख सकते हैं, तो वो एक ज़रूरी। और अब ये होता है कि टाइम के हिसाब से भी और क्वेश्चन की ज़रूरत की, और अब तो स्पेस भी लिमिटेड होती है, उस हिसाब से भी आपने बहुत टू द पॉइंट और क्रिस्प आंसर्स देने होते हैं और रेलेवेंट भी होने चाहिए वो आंसर्स। इसके अलावा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरा जो ज़्यादा फोकस, ऐसा नहीं कि बाकी पार्ट्स में इंपॉर्टेंस नहीं रही, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस इस बार ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल्स पे रहा।
वो इसलिए कि मुझे लगा कि इन पे ज़्यादा फोकस करके, मतलब इनको थोड़ा इम्प्रूव करके, मुझे लगा कि इंसान ज़्यादा स्कोर कर सकता है। तो इस बार मैंने अपने एसेज का स्टाइल थोड़ा चेंज किया। पहले मैं अपने स्टाइल में कोट से स्टार्ट किया करती थी, फिर अपने स्टाइल में एक फ़्लो के साथ चली जाती थी। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंजेस ये कि मैंने एक तो एनेक्डोट वगैरह से स्टार्ट करना शुरू किया, फिर सब हेडिंग्स कुछ इंक्लूड की एसेज में, जैसे कि व्हाट वेंट रॉन्ग, जहाँ पे आप चैलेंजेस लिखते हो तो आप वहाँ पे लिख सकते हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, या आर वी देयर येट, ऐसे कुछ सब हेडिंग्स ऐसे में हम इंक्लूड करें तो मुझे लगता है शायद हो सकता है उससे भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई हो। बाकी दूसरा, अगर हम एथिक्स की बात करें, एथिक्स में कोट्स इम्पॉर्टेंट हैं, एथिक्स में एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जांपल्स में भी रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके अलावा जैसे अभी अब अगर आप देखें, इसमें जो न्यूज़ में रहे सोनम वांगचुक, तो उनका आप जैसे एम्पैथी या उन्हीं की एक कोट रिसेंटली न्यूज़पेपर में थी, एम्पैथी इज़ द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इस तरह की बातें आप अगर न्यूज़पेपर से इंक्लूड करते हैं तो उससे ये इंप्रेशन पड़ता है कि आप ऑब्जर्व भी, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आप चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। या जैसे आप कोई मूवी देख लेते हैं, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा एक मूवी है, पैडमैन जैसी मूवीज़, आप इनको उनमें से अगर कोई एथिकल वैल्यू की एग्जांपल दे सकते हैं, इससे समझ आता है कि नहीं, इसने सिर्फ पढ़ा नहीं, इसने एंटरटेनमेंट में से भी ऑब्जर्व करके रिलेट करके यहाँ पे एग्जांपल्स डाली हुई है। दूसरी वो चीज़। फिर उसके बाद ऑप्शनल, तो ऑप्शनल सबका अपना अपना होता है, मतलब हर एक का अपना तरीका है पढ़ने का। तो अक्सर ये भी होता है कि क्योंकि मैं 3 टाइम्स पबार्ड को लेके यहाँ तक 4 टाइम पबार्ड को लेके आई, तो बीच में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, क्योंकि पबार्ड का ये रहता था कि नहीं ज़्यादा स्कोर कर पाता था, तो लोग ऑप्शनल चेंज स्विच कर जाते हैं। तो पर्सनली कोई करना चाहता है तो गलत नहीं है, पर पर्सनली मुझे लगता है कि जहाँ मैं 100% अब किसी नए सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करती, उससे बेटर मैंने ये समझा कि मैं उसी में कुछ % और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो इसलिए मैंने वो पर्सनली मुझे नहीं लगा कि वो मुझे। बाकी अगर रहा जहाँ तक इस एग्ज़ाम का सवाल है, ये बहुत अनसर्टन एग्ज़ाम है। आप मतलब पता नहीं, कोई अगर कह लेता है कि हाँ मेंस मतलब इंटरव्यू के बाद या सिलेक्शन के बाद भी कि हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नाम, मुझे नहीं पता इतनी श्योरिटी से कैसे कह देते हैं लोग। मैं नहीं कह सकती थी, क्योंकि 3 बार मैं बहुत होप के साथ, चौथी बार भी कहीं ना कहीं होप थी, मगर डर भी था क्योंकि 3 बार फेलियर देखा हुआ था। तो उतनी श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, चाहे आपने एग्ज़ाम में अपना 100% दिया हो, आप सर्टन नहीं हो सकते कि मेरी सिलेक्शन जो है वो अब निश्चिंत है। तो आप बस अपनी तरफ से कोताही नहीं करिए, मेहनत में अपनी तरफ से 100% दीजिए। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप पढ़ाई पे अपना जो इन्वेस्टमेंट एनर्जी का, अपने टाइम का करें, वो आपके हाथ में है। वो जब आपका रोल जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर आपको सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ देना है। अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो इंशाल्लाह हार्ड वर्क आपका हमेशा जो है पे ऑफ ही करेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन है तो पूछे आप। हाँ, बैठ के बताओ। मैम, माय क्वेश्चन वुड बी, मतलब हम कैसे अप्रोच करें करंट अफेयर्स को, सो दैट मतलब हम किस मैनर में के नोट्स जैसे बनाने होते हैं जी, लाइक नोट मेकिंग या न्यूज़पेपर्स से नोट बनाना जरूरी है, मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा ना, कंपाइल फॉर्म में आज हर चीज़ आती है। मैं अपना बताऊं, मैंने ऑनलाइन हमारे पास सीरीज़ होती है, यहाँ पे भी बनती होंगी करंट अफेयर्स की कंपाइल सीरीज़। मटेरियल में ये है कि आपने यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स। उससे क्या होता है, आप अगर एक चीज़ को मल्टीपल रिवीजन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 टॉपिक्स पढ़ते हैं और उनको बार बार रिवाइज करके रिटेन कर पाते हैं, उसके वो बेटर है, या अगर आप 10 टॉपिक पढ़ के कुछ भी याद ना रख पाएँ। तो मुझे तो लगता है कि 5 टॉपिक कम से कम पढ़ के उसको रिटेन कर पाएँ। तो आप अगर कंपाइल्ड फॉर्म में जो आपके पास आता है उसको पढ़ें और उसी को रिवाइज करते रहें, तो मुझे लगता है उतना काफ़ी। और अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि अगर कोई क्वेश्चन आपकी रीच से बाहर आ भी जाता है, आप उसको छोड़ के ना आए। जिसके बारे में आपको सिर्फ एक बात भी पता हो, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाएँ,
और रेलेवेंट लिख पाएँ जो पूछा जा रहा है आपसे। उस तरह से आपने वो तैयारी आपने खुद करनी है कि आपने खुद के माइंड को वैसे ट्रेन करना है कि आप उसको वैसे। तो कंपाइल फॉर्म मैंने खुद जो है विजन की सीरीज़ जो ऑनलाइन आती है वो कंसल्ट की थी, जो 365 पीटी की अलग और मेंस की अलग आती है, मैंने पर्सनली वो पढ़ी थी। और न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी आप कह रहे हैं ना कि नोट्स बनाना है और वो सब कुछ, मैंने कहा आपने टॉपिक के साथ लिंक करना है, आपने वो एग्जाम्पल उस टॉपिक में जाके लिखनी है कि ये एग्जाम्पल मैं उस टॉपिक में इंक्लूड। और अब एक टॉपिक में अगर आपके पास 4 एग्जाम्पल्स 5 एग्जाम्पल्स आ गई हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं अब उसकी वो 20-25 एग्जाम्पल लिखने की। ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी, आई चेंज माई स्टाइल ऑफ राइटिंग दिस टाइम, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो चेंज होता नहीं है। स्टडी मटेरियल तो जो इतने 10 साल से पढ़ती आ रही हूँ वही इस बार भी पढ़ा। तो आई चेंज माई स्टाइल ऑफ राइटिंग, थोड़ा यही जो करंट रेलेवेंस के साथ जो कुछ एग्जांपल्स अगर कोई आ जाती हैं उनके साथ लिंक करके आंसर्स को लिखने की कोशिश की, और थोड़ा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कि हाँ इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर कॉन्क्लूजन है, वो चीज़, वो स्ट्रक्चर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आंसर में। इम्प्रूवमेंट के लिए तो ज़रूरी है, मतलब एक आंसर जो है ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कोई आंसर ऐसा है कि जिसमें आपने बिल्कुल कन्वेंशनल सब लिखा हुआ है, दूसरा आंसर आपके सामने ऐसा आता है जिसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो बुक्स में नहीं होती है, जो एडिशनल आ जाती है। तो आप खुद जज बन के देखें कि आप किस वाले को बेटर जो है वो रेट करेंगे। मैम मैं कुछ और भी कि जैसे आपने 3 फेलियर्स अपनी लाइफ में देखे हैं रिगार्डिंग द केस, जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू आपने फेस की, व्हाट मेक्स यू कंसिस्टेंट कि आपने 4th अटेम्प्ट के लिए अपने आप को मतलब रेडी किया? पहले तो वही मैंने कहा कि कमिटमेंट जो है वो अंदर से आना चाहिए, इसलिए नहीं कि मैंने किसी को दिखाने के लिए करना है कि फलानी मेरी तारीफ़ करे या वो मैं बोले कि इससे नहीं हो रहा है, वो भी नेगेटिव चीज़ें भी। बाकी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, तो दे केप्ट एनकरेजिंग मी, मतलब कैसे हम टैकल कर सकते हैं नेगेटिव एनर्जी एंड मैं जी पहले तो नेगेटिव लोगों को बिल्कुल आप मतलब प्रिपरेशन के दौरान तो बिल्कुल मिलना ही छोड़ दें उनसे। उसके बाद आपके दे विल द फर्स्ट पीपल जिनकी आप कॉल रिसीव करेंगे इंशाल्लाह जब क्वालिफाई करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान ट्राई टू अवॉइड देम। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दें। मैं अपना आपको बता दूं, मेरा ये रहता था कि मेरा रिजल्ट जिस दिन आता था वो रात बस नेक्स्ट रात मैं ऐसे किताब खोलती थी कि जैसे ये नहीं कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, नेक्स्ट डे मैं ऐसे किताब खोलती थी कि हाँ एक स्टेज निकल गई, वो जैसी कर सकती थी वैसी की, अब नेक्स्ट इससे थोड़ी बेटर करने की कोशिश करनी है। मैंने आज तक खुद को 1 दिन 2 दिन नहीं दिए कि इस एग्ज़ाम के पीछे अब बैठ के रोना है, वो टाइम मैंने खुद को नहीं दिया कभी भी। कभी-कभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं या टेस्ट सीरीज देते हैं, हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स से उनके अच्छे मार्क्स आते हैं हमसे, अगर हम देखते हैं कि हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी जी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि डिमोटिवेट होता है बंदा कि वो चीज़ वो अच्छा कर रहे हैं, हम लैग कर रहे हैं जी। तो उस चीज़ को हम कैसे वही तो आपको तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है ना कि आपको ज़्यादा इम्प्रूव करना है, मतलब वो अपनी जगह एक हिसाब से सेटिस्फाइड बैठ जाते हैं कि मेरे को उतनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपकी वहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है कि हाँ मुझे पहले तो उसके लेवल और उसके लेवल को भी मैंने पार करना है, मतलब उस जितना हो के भी उससे बेटर होना है। तो वो तो आपको मोटिवेशन, वो तो एक हिसाब से मोटिवेशन है आपके लिए, इसमें डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि असली जो आपका परफॉर्मेंस है वो फाइनल एग्जाम का मैटर करेगा। मॉक तो आपको सिखाने के लिए, आपको जज करने के लिए नहीं है। ठीक है, कि आपके हाथ में आपकी मेहनत है, वो मार्क्स वो तो मैं भी नहीं, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं शायद फर्स्ट रैंकर होती, 20th ना होती। आपके हाथ में आपकी मेहनत है, आप कितना दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, उसके बाद आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, मगर मेहनत में कोताही नहीं। जैसे मैंने कहा, एक तो कमिटमेंट आपके अंदर से खुद से आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी मेहनत है। आपको अगर लगता है कि जैसे यही इवैल्यूएशन जो मॉक्स जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में होती है, उस इवैल्यूएशन को सीरियसली लें, उसको एज अ ये नहीं लें कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, ये लें कि हाँ मुझे इन्हें मोटिवेशन दी है टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, वो तो इम्प्रूवमेंट से होगा,
और यही आपको एक्सटर्नल जो थोड़ा सा वो होता है इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। टॉपर्स कॉपीज़ देखें, आप अपने आंसर्स को उनके साथ कंपेयर करके देखें कि आप कहाँ पे डिफरेंट कर रहे हैं, कहाँ पे कम कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं। बस वहीं से वो डिफरेंसेस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। बाकी आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। सिलेक्शन तक मैं कह रही हूँ ना, कोई मैं तो कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती थी कि आई विल बी इन द लिस्ट। इस बार मेरा एटीट्यूड यही था जो और इसी बार हाँ, मगर ये है कि जो होगा देखा जाएगा एक तरफ और तैयारी दूसरी तरफ। जो होगा देखा जाएगा कि आड़ में ये नहीं करना है कि किताबें नहीं खोलूंगी तो जो होगा देखा जाएगा, वो अपनी तरफ और ये अपनी तरफ। जी, स्ट्रैटेजी रिवीजन की पहले तो कंप्लीट है। मैंने बोला मैं डेली टारगेट सेट करती थी कि पहले तो कंप्लीशन होता है कि कंप्लीट करना है, फिर मैं रिवीजन में लग जाती थी। मतलब ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ा और उसी को रिवाइज करना शुरू किया। मैं पहले अपना पूरा वो, फॉर एग्जांपल पॉलिटी का अलग से सेक्शन है तो उसको पढ़ लिया पूरा, फिर दिन सेट किया कि अब इसको मैं फलानी दिन पे फिर से रिवाइज करूँगी, तो उस बीच में बाकी सेक्शंस जो है वो कर लिए। तो वैसे मैं मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती थी। टारगेट सेट होता था, उस टारगेट तक नहीं तो 2-3 दिन बाद, हफ्ते एक बाद वो टारगेट जो है कंप्लीट होता था। ज़रूरी नहीं कि उसी दिन पे हो जाता। उसके बाद मेरा फिर से होता था कि हाँ अब फिर से उसी को वापस लाना है, प्लस एडिशनल जो सप्लीमेंट होता था वो चलता रहता था। वो तो करना है। अब आपके 17 डेज शायद, अगर पीटी की नोटिफिकेशन के हिसाब से शायद 17 या 16 दिन रहते हैं। इन 16 दिनों को 32 दिन आपने खुद बनाना है। तकलीफ भी आपने उठानी है और बाद में फ़ायदा भी आप ही लोगों का होगा। इन 16 दिनों को 32 दिन आप तक है, वो कैसे बनाओगे आप? एस्पिरेंट्स के बिहाफ पे मेरा एक क्वेश्चन। जी सर। दिस इज अ क्वेश्चन दैट वी फेस इन आवर क्लासरूम बहुत ज़्यादा। सिंस यू एज एन एस्पिरेंट, आपका एक और हिस्सा भी है फैमिली लाइफ का। यू आर मैरिड, यू हैव किड्स, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। सो इस सिनेरियो में पढ़ना और दोनों चीज़ों को मैनेज करना डिफिकल्ट है। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ऑफ मैनेजिंग योर टाइम, ताकि आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें कि फैमिली भी मैनेज हो रही है और साथ में आप पढ़ भी रहे हैं? वो टाइम मैनेज कैसे किया? हमारा मतलब ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टोटल घर की होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो मुझे अपनी वाली का जो मेरी शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनके लिए टाइम मैनेज करना होता था। सुबह और शाम का टाइम, शाम मतलब डिनर से पहले का टाइम, सुबह जागने के बाद का टाइम, अप टू 10 बजे तक वो टाइम मेरा होता था कि हाँ मैं इस ड्यूरेशन में मेरे हिस्से में जो आया है वो कर दूंगी, दिन का आप देखना। बस। हाँ जी। जैसे कि आपने 3 बार फेलियर देखा इंटरव्यू जर्नी में, तो इस बार आपके हिसाब से आपने क्या डिफरेंट किया? इस बार मेंस में भी मैंने बहुत डिफरेंट किया। मैंने यहाँ की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी क्विंटेसेंस की, जिससे मुझे बहुत अच्छा जो है फीडबैक मिला। फीडबैक यही कि मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ, मैं ये चीज़ ठीक नहीं कर रही हूँ। तो मैंने अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंज किया मेंस में। और इंटरव्यू में भी इंसान मतलब 4 बार इंटरव्यू फेस करके और वही जो होगा देखा जाएगा एटीट्यूड से अगर जाए तो डर उतना नहीं रहता इंटरव्यू में भी। तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं बोलूँगी कि डर नहीं था इस बार मेरे इंटरव्यू में भी उतना जितना पिछले 3 बार रहा था। बस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, ma'am, for your insights. Now I'd like to introduce our second speaker, Mr. Sajad Ahmed Loon, who also qualified in the recent exams with the rank of 52. He'll share his own journey with us. Please join me in welcoming Mr. Sajad. Respected Chairman Sir, Mr. Tahlil Saab and all the faculty members, अगर आप लोगों को इन रियलिटी जानना होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक रियल एस्पायरेंट जिसने फर्स्ट टाइम मेंस दिया और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई भी किया, एंड
मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाता था। मुझे जीएस में 120 भी ला रहा था, बट मैं रह रहा था एक क्वेश्चन से सीसेट में। एक बार नहीं 2 बार हुआ वो। इस टाइम मेरा फर्स्ट मेंस था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूँ, जब तक हमें एक गाइड नहीं होता है, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, इलिटरेट फैमिली से आते हैं, जिनको पता भी नहीं होता है कि हम क्या करते हैं। उनके मैंने एक बार अपने पापा को ये कहा था, पापा मुझे कोचिंग जाना, मुझे सिविल सर्विस करना है। उसने बोला वो क्या होता है। फिर मैंने ऐसे ही, हम एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि हम तहसीलदार बनना चाहते हैं। तो उसने बोला अच्छा है, भेजो मुझको तो जाओ कोचिंग। उसने मजाक में कहा, लेकिन मैंने सीरियसली दिल पे लिया ये चीज़। उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं जिससे मैं ये चीज़ें ओवरकम करूं। हमदर्द स्टडी सर्कल आप लोग सब जानते हो दिल्ली में, तो मैंने एनसीईआरटीज़ लाई। मेरे बैकग्राउंड मेडिकल था, मेरा एमएससी ज़ूलॉजी है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। तो मैंने जब वो लाई, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहले मैं आर्टिस्ट थोड़ा अजीब ही लगता था, ये पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो ये सिस्टम क्या होते हैं, ये इतना मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब मुझे एक प्रोफेसर ने बोला, उसका नाम है बिलाल अहमद, उसने बोला नहीं आप कर सकते हो, ये मुझे भी पता नहीं। तो उसने दिया था 4-5 बार केएस का एग्ज़ामिनेशन, लेकिन उसका नहीं हुआ। तो उसने मुझे अपने नोट्स प्रोवाइड किए। जब मैं आया घर तो मैं थक गया, 2-3 दिन पढ़ के मैं थक गया। मैंने सोचा ये क्या परेशानी है, अब ये रखना है याद, इसमें कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता है, इसमें कोई एनालिटिकल चीज़ नहीं है साइंस की तरह, क्योंकि साइंस स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है पहले ये। उसके बाद जब मुझे इंटरेस्ट आया इस चीज़ में, जब मैंने सोचा कि ये लोग जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये किस तरह अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, फिर जब इस फील्ड के लोगों को जानने की कोशिश की है, चाहे वो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे हमारे केएस ऑफिसर्स हो, चाहे कोचिंग सेंटर्स के फैकल्टी मेंबर्स हो, स्पेशली मिस्टर तहलील सर, आप लोग यकीन करो या ना करो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जिस तरह हम एक जो रूहानी फिगर होती है उनको देखते हैं, और मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है जो तहलील सर की वीडियोस ऐसे देखते हैं। जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया तो अनफॉर्चुनेटली 106 जीएस में थे, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। दूसरी बार दिया 124 जीएस में थे, सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। एंड दिस में थर्ड अटेम्प्ट, मैंने 145 सीसेट में लाई एंड ऑन 106 फिर से जीएस में। इतनी मेहनत मैंने की। अब सोचो, लेकिन मेरे पास गाइडेंस बिल्कुल नहीं थी, मैंने कोचिंग बिल्कुल नहीं लिया। मैंने सोचा खुदाया अब मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैं क्या करूं। दिस इज रियलिटी, मैं फैक्ट कहता हूँ। तो मैंने एक ऐड देखा क्वांटेसेंस का, क्योंकि इनकी टेस्ट सीरीज़ में ऑनलाइन करता था, उसमें फ़ीस उतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि मैं एक बिल्कुल डाउन ट्रॉडन फैमिली से आता हूँ, जिनको मेरा फादर लेबर है, कभी सेहत भी अब ठीक नहीं रहता है, जब एज आती है तो फिर सेहत भी ठीक नहीं रहता है। तो मैंने जब सोचा मैं आया इनके पास, तो मैंने रोहान सर को यहाँ पे देखा। उन्होंने बोला 6000 है फीस। अब यकीन करो, हमारे पास, मेरा भाई था साथ, हमारे पास 1900 थे टोटल। मैंने सर को बोला रुको एक सेकंड, हम नीचे से आ रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज़ ऑलरेडी अ टीचर, जम्मू में रहता है। तो उसने बोला, मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है। उसको पहले से ही मुझ पर भरोसा था, ये कभी न कभी कुछ करेगा। मैंने उसको बोला मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे टेस्ट सीरीज़ लेनी है। लेकिन जब मैं ऊपर आया तो सर ने मुझे एक बात कही, कोई बात नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हो, अगर नहीं भी है तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो आराम से। जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की तो मुझे आज भी याद है, फर्स्ट जब मैंने मॉक लिखा, अब इतना यकीन करो मेरा, ये सर जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे इनका नाम भी पता नहीं है। इतना मैं इनके जो ये मुझे गाइड कर रहा था, इतना मैं उसमें खोया। मैंने आज तक इसको कभी नाम नहीं पूछा है, क्योंकि मुझे बस इतना होता था कि ये क्या कहता है मुझे। इसने जब मेरे पहली, मुझे वो याद है, वो टेस्ट हिस्ट्री का टेस्ट हमने दिया, सुतूपा एक क्वेश्चन डाला था। जब उसने देखा, मैंने डायग्राम भी बनाई, लेकिन मैंने 6 पेजेस का क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा 6 पेजेस का। तो सर ने मुझे वहाँ पे ही बुलाया, बोला ये क्या लिखा है, एक ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है कोई, मुझे पता ही नहीं था। तब से लेकर जब तक मेंस आया, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए।
मैं सर के पास आता था, मैं रूहान सर के पास आता था, लेकिन मेरी सक्सेस के पीछे अगर मुझे क्रेडिट देना हो किसी सर को तो सिर्फ ये सर है जिसने मुझे सिखाया कि मेंस कैसे लिखे। बस इसने मैं दिल से हमेशा अपने टीचर्स की इस इंस्टीट्यूट के फैकल्टी मेंबर्स को रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसको बिल्कुल ज़ीरो से वो एक ऑफिसर बन गया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी मेहनत इसमें बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन वो मेहनत थी एक रॉ मटेरियल की तरह। आप सोचो हमारे रूम में चीज़ें हैं लेकिन हर किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं है, बिखरी हुई चीज़ें हैं। सिमिलरली मेरी नॉलेज ऐसी ही थी, मुझे बहुत नॉलेज थी। फिर सर ने एक मॉडर्न हिस्ट्री में डाला था एक क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस पे लिखो, मैंने फिर से 4 पेजेस लिखे। इसने मुझे सिखाया फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ क्वेश्चन क्या होती है, किस तरह लिखते हैं, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या कहता है, उस हिसाब से। और ये हमें ऐसे क्वेश्चंस डालते थे जो हमारे पर्सपेक्टिव्स और हॉरिज़ॉन्स इंक्रीज कर रहे थे। फॉर एग्जांपल इसने स्तूपा डाला था, इसने स्तूपा इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं डाला था, बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट में इसने डाला था कि वर्ल्ड में स्तूपास कहाँ इंपॉर्टेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है उनकी। हम जब पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे सिटिक व्हाट इज स्तूपास, उनका स्ट्रक्चर पढ़ा, उनकी यहाँ किस मज़हब में है वो। लेकिन इसने सिखाया हमें कि आप किस तरह आप लोग अपने हॉरिज़ॉन्स एक्सपैंड करोगे। उसके बाद मैंने जब यहाँ लिखना शुरू किया, अब मानो मेरा कि मुझे 100 में से पहले 20 आ रहे थे, लास्ट में मुझे 100 में 60 भी आए यहाँ। वो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इकोनॉमिक्स का एक पेपर दिया, मुझे लगा ये सबसे बेस्ट हो गया मुझे ये। जब मैंने उस वैल्यूएटर को कॉल भी किया, मैंने बोला सर अब कहाँ से लाओ इतना, सब तो लिखा है, डेटा लिखा है, सब लिखा है, अब कहाँ से लाओ। उसने बोला दिस आंसर इज़ द बेस्ट आंसर, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे ही बोलूँ दिस इज द परफेक्ट आंसर, यू विल स्टॉप योर प्रैक्टिस। ये होते हैं एक जो मेंटर होते हैं, ये होते हैं टीचर्स। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है एस्पिरेंट्स की कि आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आपको सिविल सर्विस दिल से करना है तो तभी करो। मैं ऑनली कैंडिडेट वो हूँ जिसको बाप ने 2 महीने बात नहीं की कि मैंने रेलवेज सिलेक्शन करके भी छोड़ी है। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन करके भी उनको माना नहीं ज्वाइन करना। फिर फाइनली जब डीसी ऑफिस से कॉल आई कि आपको वेरिफिकेशन करनी है, मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया है, तो मुझे पुलिस स्टेशन लिया गया वेरिफिकेशन करने के लिए, बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं था। मैं इस वक्त हूँ करंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं था, मुझे उसमें एक सर्टिफिकेशन नहीं थे। एंड मैं वाहिद वही कैंडिडेट हूँ जो इन 2-3 महीनों में हार्डली 4 बार ड्यूटी गया, हार्डली, क्योंकि मुझे बस सिविल सर्विस करना था। मुझे इसके पीछे इसके बगैर कुछ दिखता ही नहीं था। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ जाऊँ कि आप लोग स्पेशली जो रूरल सेटिंग से है, जिनको ज़्यादा एवेन्यूज़ अवेलेबल नहीं है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सब कैंडिडेट से, चाहे जो ऑनलाइन देखे या ऑफलाइन जो यहाँ पे है, कम से कम एटलीस्ट अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ये जो यहाँ हमारे हैं, ये हमारे टीचर्स जो, हमारे मेंटर्स जो, ये हमेशा ये बात अपने जहन में लेके चलते हैं कि हमें डाउन ट्रॉडन सेक्शंस के लिए कुछ करना है सोसाइटी में। मैं सिविल सर्वेंट बना, हम सिविल सर्वेंट बने, हमारे सिविल सर्वेंट्स ऑलरेडी है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें किसी दायरे के अंदर है। लेकिन आप देखो इनकी मेहनत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को उठाते हैं। अगर हम इस तरह सब अपने दिल को, अपने दिमाग को तैयार करें तो एक सोसाइटी हमारी एक वाइब्रेंट और इंक्लूसिव सोसाइटी बन सकती है। जब प्रेपरेशन में आप लोगों को बोलूँगा प्रीलिम्स के रिलेट प्रेपरेशन किस तरह मैंने की है, और आप लोगों को क्या मैं नसीहत दूँगा कि आप लोग क्या करोगे, कि मैंने जीएस में हमेशा बेटर स्कोर किया है। पहले आप जो भी स्टैटिक है उसको कंप्लीट करो, उस स्टैट को इस तरह कंप्लीट करना है कि वो चीज़ें आप में इम्बाइब हो जाए। ये नहीं कि मैंने ऐसे रटा मारा रटा, उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का स्टिल इट इज़ अ लैकुन इन आवर एजुकेशन सिस्टम, जो हमारे एकेडमिक्स पे है। मैंने एमएससी में भी लोग देखे जो रटा मारते थे, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम निकालते थे। ये वो एग्ज़ाम नहीं है, ये किताबों से भी नहीं निकालते। मैंने देखा एक बार किटकैट चॉकलेट मैंने खाया, किटकैट चॉकलेट
उसमें एक एक टूरिस्ट साइट प्रमोट कर रही थी, और आईएएस में वही क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में उसी के रिलेट। आपने कोई हेडलाइन पढ़ी, फॉर एग्जांपल इंडिया और रशिया टाइज, हमने रशिया के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट तो कम किया, लेकिन हम ज़्यादा उन पे अब निर्भर करने लगे ऑयल इंपोर्ट्स पे, क्योंकि उनको अमेरिका के सैंक्शंस है। वहाँ पे ये नहीं पढ़ना है खाली इतना याद रखा आपने तो बस हुआ, आपको रखना है याद कि इंडिया के लिए क्या एवेन्यूज़ है, रशिया में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एवेन्यूज़ है अवेलेबल वहाँ पे। इस तरह आप लोगों को पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है ये किस तरह अब शेप होगी, क्योंकि वर्ल्ड नहीं रहा बाइपोलर, ये मल्टीपोलरिज्म की तरह जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि हॉरिज़ॉन्स अपने जितने आप खोलोगे, आप ये सोचो, आप अंदर बैठो, अपने विंडोज़ बंद करो, आपके रिलेटिव्स कॉल करेंगे, आपको बहुत सारी, जिस तरह मैम ने ऑलरेडी बोला है, नेगेटिव एनर्जी, मेरा मानो कि सबको बुला के रखो, सीरियसली सबको बुला के रखो, क्योंकि व्हेन यू विल सक्सीड एवरीवन विल कॉल यू। मेरे फ़ोन में 20 नंबर्स थे ऑलरेडी, मैंने कोई आज तक सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं किया, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना स्नैपचैट। मैं, आप लोग बोलोगे शायद ये ज़्यादा फेंकता है, अल्लाह की कसम मैंने कभी भी नहीं चलाया। रीज़न यही है कि मुझे गोल अचीव करना था अपना। मैंने सबसे ज़्यादा काम यूट्यूब, मैंने सबसे ज़्यादा काम गूगल से लिया है, अपने टीचर्स से। मैं आता था यहाँ, अपने मार्क जो जब भी मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं उनको इवालुएट करता था। इवन कि सर एंथ्रोपोलॉजी इसका था, मेरा ज़ूलॉजी था, मैंने ये एक लड़के को सिखा रहा था किस तरह लिखोगे। मैंने इसको बोला सर मैं कैसे लिखूँ, मेरे सामने बैठे ये सर, आप बोलो इसको, बोल रहे थे कि मैंने बोला मैं कैसे लिखूँ इसको। इसने मुझे, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और ज़ूलॉजी में एक टच है, कुछ पोर्शन है वहाँ पे जो मिलता है एवोल्यूशन का, और जेनेटिक्स का कुछ पोर्शन है वो मिलता है। करंट अफेयर्स जहाँ तक है, आप मैम ने आप लोगों को बोला कि सोर्सेज है। अब एक एस्पिरेंट ने बोला हम क्रिस्प किस तरह करें। अब एक कॉपी निकालो, उस कॉपी में आप फॉर एग्जांपल विजन ने एक टॉपिक लिखा है सेंटर स्टेट रिलेशंस का। ये तो ऑलरेडी स्टैटिक है, आपको पता होना चाहिए पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है। लेकिन आज अगर किसी सेंटर स्टेट रिलेशन अगर देखोगे, तमिलनाडु वर्सेस सेंटर, वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंटर, ये न्यूज़ में है ज़्यादा। ये चीज़ें आप अपने नोटबुक पे नोट करो। बाकी सेंटर स्टेट रिलेशंस आपको पता है। अब वहाँ पे आता है रोल ऑफ गवर्नर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। इज़ इट वीकनिंग द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया, और इज़ इट अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। कि गवर्नर जब होता है वो सेंटर का एक एजेंट होता है, वो इंडिया की यूनिटी एनहेंस करता है। तो आप किस तरह इस डायनेमिज्म को बरकरार रख रहे हो अपने जहनों में, आप किस तरह पढ़ रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और अगर मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है, आप लोग यहाँ इस इंस्टीट्यूशन में आप अपने आप को खुश नसीब समझो। अगर आपको ये टीचर जूते भी मारे, इनके पीछे पीछे चलो। आई बिलीव इन दैट, क्योंकि मुझे लगा जब मैंने मेंस लिखा इस बार, मैं जब देता था एग्ज़ाम पहले तो मुझे लगा आई एम ज़ीरो। पहले मुझे लगता था मुझे बहुत नॉलेज है, क्योंकि वो प्रीलिम्स के गारंटी थे। जब मैंने रेक्टिफाई खुद को करना शुरू कर दिया टीचर्स से, तो तब मुझे लगा आई एम ज़ीरो। और आप बिलीव करो, जब हम इंटरव्यू देते थे, मैंने मैम को देखा, तब मुझे पता नहीं था शी इज़ मैरिड। जब मैंने सुना शी इज़ मैरिड, तो मैंने अंदर ही बोला अगर ये इंसान कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। शी इज़ इंस्पिरेशन फॉर अस, और ख़ास कर लड़कियों के लिए। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, लड़कों को, आप देखो इसका हस्बैंड, उसका कैरेक्टर क्या होगा। हमें अपनी बहन होती है घर में, हम उसको बोलते हैं बाहर मत निकलो, मत पढ़ो। ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगर हमारा जिसके 2 बच्चे हैं, उसको अगर अपना हस्बैंड सपोर्ट करे, आप लोग कल किसी से शादी करोगे, अगर उसका ड्रीम होगा, उसको हेल्प करो उसमें, ताकि वो सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। मेरी बहन है, हमने बहन की शादी की है, आप लोगों की बहनें होगी। हमें एक प्रॉब्लम है यहाँ, हमारी सोसाइटी ज़्यादा कंजर्वेटिव डे बाय डे होती जा रही है।
हम अपनी बहनों को बोलते हैं नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, घर वाले बोलते हैं आपको ज़रूरत नहीं है, चलो आपने पढ़ा इतना, 10वीं तक पढ़ा, 12वीं तक पढ़ा, ग्रेजुएशन की, अच्छा अगर बनोगी भी तो टीचर बनो, अगर बनोगी भी तो कुछ नर्स वर्स बनो। वो फील्ड्स भी अच्छे हैं जिसको पैशन होगा, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। हमें अपनी बहनों को एक मोटिवेशन देनी चाहिए कि आप लोग भी सिविल सर्वेंट्स बनो। जब दुनिया की लड़कियां स्पेस स्टेशन में रहेगी तो हम अपनी लड़कियों को कैसे बंद कर सकते हैं कि वो सिविल सर्विस में भी ना आ जाए। हमें इसी तरह इनसे इंस्पिरेशन लेनी है कि हम भी ये अपने साथ एक अहद करें कि हम अपनी बहनों को इन फ्यूचर हमारी जो बेटियां होगी हम उनको सपोर्ट करेंगे हर ज़िंदगी के उस बोर्ड पे, और हम उनकी सक्सेस में शरीक रहें। उसके बाद मेनस जिसको ज़ूलॉजी है, मैं एक बात कहूँ आपको, मुझे हर किसी ऑप्शन का पता नहीं है, ये अलग अलग डोमेन होता है, हर किसी को अलग अलग होता है। मैंने रिज़ल्ट के बाद फिर वो डीलापन भी छोड़े क्योंकि बहुत टाइम तक नहीं आ रहा था, जब आया तो एक साथ आया। मैंने टोटल 100 क्वेश्चन सिलेक्ट किए ए पेपर और बी पेपर में, 22 बुक्स पढ़ने थे। अब देखो मेरा माइंड कितना तेज चला होगा उस टाइम। मैंने टोटल पेपर ए में 50 क्वेश्चन, पेपर बी में 50 क्वेश्चन किए सिलेक्ट, और उनको कॉपी पे ऐसा मटेरियल बनाया, ऐसा डेटा डाला, खाली 1.5 पेज में, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखा मैंने किसी को, और उन्हीं को पढ़ा। और जब मैं ऑप्शनल का देने गया एक भी क्वेश्चन मुझे छूटा नहीं, उन 100 क्वेश्चन में से ही पेपर आया था। दिस इज़ लक एंड ये दिमाग का तेज चलना कि आप लोगों को कमांड होनी चाहिए सब्जेक्ट पे कि इसने अगर पिछली बार ये डाला था ये क्या डाल सकता है। इस तरह अप्रोच करना है। जनरल स्टडीज़ के रिलेट मैं लकी था, मैंने उसके भी नोट्स बनाए, तो हर किसी पेपर में मुझे 10-10 डायरेक्टली आते थे जो मुझे पढ़ के होते थे, 10-10 डायरेक्टली आते थे, क्योंकि मुझे सर ने पहले ये बोला था। जब ये क्वेश्चन पूछता था मैं सोच रहा था ये एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, ये ऐसा पूछता है, जो पेपर फ्रेम करेगा वो कैसे पूछेगा। मुझे पहले ही पता था इंडिया रशिया आएगा, इंडिया कनाडा आएगा, और आप देखो किस्मत, वहाँ 5 मुल्कों की आई, मुझे 5 ही लिखे थे ऑलरेडी, और मैंने वो रट्टा ही मारे थे, ऐसे ही गया, क्योंकि मुझे वो बना के था, मुझे पता था ये कहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें गाइडेंस मिली थी वैसे। ये मैं बोलता हूँ शार्ट, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जब तक आप लोग अपने हॉरिज़ॉन्स एक्सीड नहीं करोगे, जब तक आप लोग अपने टीचर्स का नहीं सुनोगे, जब तक आप लोग, अगर आपको टीचर गलती निकालेगा तो आप पीछे से बोलोगे हाँ इसको खुद पता नहीं है, उसको पता होता है हम लोगों से ज़्यादा, इनकी एक्सपीरियंस होती है, इनको पता होता है ये इस फील्ड में पिछले 5-5, 10-10, 20-20 साल से होते हैं, हम इनके पास ज़ीरो है। मैं बोलता हूँ मैं अगर केएस क्या 10 बार केएस भी बनो तो मैं इनके बराबर खुद को कभी नहीं ला सकता हूँ, ना मैं सोच सकता हूँ। ये आप लोगों को ये किस्मत है कि आप इस इंस्टीट्यूट में हो। मैंने यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज़ लिखी है और हर किसी ने मुझे यहाँ कोऑपरेट किया है, और आपको फैक्ट ये पता है कि मैंने लास्ट में इनको 1000 दिया भी नहीं है क्योंकि था ही नहीं उस टाइम, मैंने मुनासिब नहीं सोचा इनको देना फिर। लेकिन इन्होंने हमेशा कभी उस चीज़ के पीछे में जो एक वो प्रॉफिट मोटिव इन्होंने नहीं रखा है। इन्होंने रखा है कि सोसाइटी में अगर कोई आगे चले। देखो अब मेरी फैमिली कल तक कहीं पे नहीं थी, मैंने 700 से ज़्यादा कॉल्स रिसीव किए, मीडिया वालों को फेस करना, अपने विलेज में क्या अपने 10 अराउंड जो 10 विलेजेस है उनसे लोग आते हैं कि ये आपने नहीं ये हमने किया। कल इंसान तब प्राउड फील करता है, तब लगता है कि मैं हूँ कुछ। बाकी जो खुदा ने लिखा होता है वो हो के रहता है। अल्लाह ताला हमेशा, आप बोलोगे अब मेहनत तो ज़रूरी है, देखो अल्लाह ताला उसी को मेहनत करवाता है जिसको उसको पहुंचाना होता है। अगर उसको नहीं पहुंचाना होगा तो वो इंसान कभी मेहनत नहीं करेगा, हमें आलसपन आता है फिर, क्योंकि खुदा को पता होता है कि इसकी किस्मत में नहीं लिखा है।
और मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि अगर हमारी किस्मत में अल्लाह ताला ने कुछ नहीं लिखा है तो आप बैठो, तहज्जुद पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, रब को बोलो कि खुदाया अगर मैं ये मेरी किस्मत में नहीं है तो इसको लिख मेरी किस्मत में, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, बस। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन से आप तो पूछे। सर, हाउ टू रेगुलेट आवरसेल्व्स? रेगुलेट इन व्हाट सेंस? मतलब हम कैसे उनको कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग रन, मतलब नहीं। देखो मेरे भाई, पहले आप एक चीज़ ये जहन से निकालो कि लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ऐसा कुछ चीज़ नहीं होता है। यू हैव टू सक्सीड। आपको यही जहन में रखना है, मुझे करना है, इसी बार करना है, मुझे करना है, इसी बार करना है। आपको उस अंदाज से मेहनत करनी है कि आपको लगे कि क्या 90 सीट से इस बार आप सबको बोलो 90 नहीं है, 89 नहीं है, एक मेरी है, बस। ये अप्रोच रहना चाहिए आपका। Yes? Sir, how did you cope with the fear of not failing in the exam? Did some tricks? मेरी बहन, फेलियर की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। मैं ऑलरेडी एम्प्लॉय था, लेकिन मुझे हर टाइम, जब भी मैंने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मुझे हर टाइम फेलियर ही लगता था। फर्स्ट टाइम मुझे ज़िंदगी में लगा कि आई एम सक्सीड, क्योंकि यही मेरा ड्रीम था। डरना नहीं है हमें फेलियर से। मुझे APJ अब्दुल कलाम की बात याद आती है। उसको इंटरव्यू लिया जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, तो उसने बोला वहाँ पे कि मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। उसने बोला अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिलेक्शन नहीं है। उसकी रैंक कुछ 10th और 11th थी। तो उसने बोला नहीं, ये मेरा ड्रीम था, मुझे अचीव करना था। जब वो प्रेसिडेंट बन गया तो उसने पहले जो एयरफोर्स का चीफ होता है उसको बुलाया, उसको बोला मुझे सिखाओ मिग चलाना। एंड ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने मुझे पता नहीं है फर्स्ट है, लेकिन वो प्रेसिडेंट है जिसने मिग चलाई। फिर उसने अपने ड्रीम को परस्यू किया। तब तक मैंने भी यही सोचा था। मुझे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अगर सिविल सर्विस नहीं तो क्या? मैंने बोला फिर से ब्यूरोक्रेसी। बोला कैसे? मैंने बोला वैसे। बोला कैसे? मैंने बोला कल इलेक्शन लड़ूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, आई एम द टॉप ब्यूरोक्रेट इन द वर्ल्ड। क्योंकि मेरा ड्रीम ब्यूरोक्रेसी है, मेरा ड्रीम है सिविल सर्विस, मुझे लोगों को सर्व करना है। मैंने यही जवाब दिया। ज़रूरी नहीं था कि ये सो जाए। अब तो मुझे सुसाइड नहीं करने, वो हराम था। तो मरना नहीं था ना। बेटर था ना कि मैं इलेक्शन में आता तो मैं मिनिस्टर बन जाता, मैं ब्यूरोक्रेट्स के टॉप पे आ जाता। बेटर था मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो नेशनल लेवल पे काम करे उस पे जाता। क्या पता कभी वक्त आता मैं भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता। सो नेवर लूज़ योर होप। अगर एक तरीके से आपको अपना गोल अचीव नहीं हो रहा है, उस गोल को 100 तरीके ढूंढो वहाँ तक पहुँचने में, बस। जैसे आपने भी कहा ना कि आपने ज़ूलॉजी का लिमिटेड मतलब ऑप्शन का कभी हम लिमिटेड नहीं सोच के चलते कि हम इसमें लिमिटेड रहें। हर एक बच्चा ये सोचता है कि हम इसमें अपने जो हॉरिजन्स है एक्सीड ही करें अक्सर। तो आपका क्या रवैया क्या था कि आपने जो ज़ूलॉजी के पेपर में आपने कहा कि जैसे मैंने 100 क्वेश्चन जो प्रिपेयर किए थे, खाली फिर उनमें से क्वेश्चन आए थे एटलीस्ट 10 या 12। और बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऑप्शन में जाके 10-12 जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आप खुद फेस कर रहे हो, खुद से आप लिख रहे हैं। तो इसके पीछे आपकी क्या स्ट्रेटजी देखिए कि आपने कैसे सोचा कि एग्जामिनर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डाल रहा है? देखो सर, मैंने जब भी पढ़ा है कोई भी सब्जेक्ट, जब तक मैं उसको दिल से नहीं पढ़ता हूँ तब तक मुझे नहीं लगता मैंने वो पढ़ा है। अब आप सोचिए कि दिल से पढ़ना क्या होता है। एक तो मेमोराइज़ करना होता है, एक दिल से पढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल हमें ज़ूलॉजी का जो होता है, हमें सेल बायोलॉजी होती है, जेनेटिक्स होती है, हमें उसका बेसिक सब पता था। मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया करता कि मैं बेसिक पढ़ता। आप मुझे इस वक्त भी बोलो किसी भी चीज़ पे लिखो, मैं लिखूँगा आराम से, जो ग्रेजुएशन जो MSc तक आता है। अब मैंने सोचा वहाँ पे व्हाट इज़ द डिफरेंस। मैंने पिछले साल का पेपर एनालाइज़ किया, पिछले 2 साल का। मैंने सोचा ये क्या रिपीट करते हैं या नहीं। मुझे लगा ये पिछले साल का बिल्कुल भी रिपीट नहीं करते, बिल्कुल भी रिपीट कोई क्वेश्चन नहीं करते। अगर किया तो हार्डली एक क्वेश्चन करते रिपीट। जो पिछले साल का पेपर था वो लगभग 30 क्वेश्चन 30 टॉपिक्स आते थे। मैंने उन 30 को छोड़ा वहाँ पे। मैंने सोचा ये पिछली बार आई, ये इस बार नहीं आएंगे। एक अप्रोच तो मेरा ये था। दूसरा मैंने किया, मैंने सोचा आज ज़ूलॉजी जो है, देखो
सिविल सर्विस ये नहीं कि आपका ऑप्शनल है, सिविल सर्विस ये है कि आप अपने ऑप्शनल को भी सोसाइटी के रिलेट करो। मैंने सोचा वहाँ पे कि आज बायोलॉजी फील्ड में क्या इम्पॉर्टेंट है। हम वाइल्ड लाइफ ज़्यादा अब कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट डैमेज होता जा रहा है। तो मैंने ज़्यादा फोकस रखा वहाँ इकोलॉजी पे। मैंने इकोलॉजी में वो क्वेश्चंस लिए जो करंट अफेयर्स के साथ रिलेट हो। दैट इज़ वाई वो प्रिक होता था मुझे कि मैं कहाँ से क्वेश्चन उठाऊँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें एक क्वेश्चन आया था एवोल्यूशन के रिलेट, और आप सोचो थैंकफुली यहाँ पे एक इसी इंस्टीट्यूट में मैंने इंटरव्यू दिया, उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, अच्छा बेटा आप ज़ूलॉजी में, उसने बहुत क्वेश्चन पूछे तो मुझे लगा ठीक है ज़ूलॉजी पूछ रहा, तो मैं भी जवाब दे रहा था, लेकिन उसको लगा या मेरी बात याद रखना हमेशा, इंटरव्यू पैनल को जब लगे ना आपको गिराना है तो वो बोले कि मेरे मामा का नाम क्या है, जब उनको लगे ना तुझे पार करना है वो बोले कि तेरे मामा का नाम क्या है। ये याद रखना मेरी बात। उसने बोला द साइज ऑफ द ग्रे मैटर इन ह्यूमंस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दिस विद द ह्यूमन गट। मैंने बोला सॉरी सर, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं था, ये रिसेंट रिसर्च था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैं जब घर गया वापस मैंने सोचा ये क्या चीज़ है, वो एवोल्यूशन के रिलेट था। और आप देखो किस्मत वहाँ में एवोल्यूशन ऑफ हारिसिया है। दैट मीन्स आपको हर पॉइंट पे, हर मोड पे आपको ऊपर रखना अपने आइज़ को, खाली इन आइज़ को नहीं जो देखते हैं, हर किसी सेंस को ऊपर रखना है। आप जब चलोगे कोई बात कर रहा है आप सोचो ये क्या बात कर रहे हैं, ये रिलेवेंट मत है मेरे एग्ज़ाम के रिलेट। इस तरह आपको पढ़ना है। आपको हमेशा अगर आपको कोई डांटे भी, अब ये चेक करो कि मुझ में पेशेंस है कि मैं ये बर्दाश्त करूँ। अगर मैं आज ये बर्दाश्त कर सिविल सर्वेंट बन के मुझे कोई गाली भी देकर सामने, मुझे उसको कुछ नहीं बोलना है बिकॉज आई एम ए सिविल सर्वेंट। अगर आप उस टाइम बर्दाश्त नहीं करोगे तो देन सोचो मैं भी इस लायक नहीं हूँ। इस तरह आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और लास्ट में मैं एक बात बोलूँगा कि अपने टीचर्स के पीछे पीछे रहो। मिनिमम 3 months to 4 months कोचिंग ले लो। और वो कोचिंग नहीं कि आप लोग को सर पढ़ाए यहाँ पे बोर्ड पे आपको सिलेबस कंप्लीट करके दे, नहीं। इनको बोलो अप्रोच क्या है, करना किस तरह है। आई प्रॉमिस यू इस बार अगर इस इंस्टीट्यूट से 20 क्या हो, ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 50 हो सकती है इस इंस्टीट्यूट से। आप मेहनत करो, हमारी दुआ आप लोगों के साथ है। और मैं आप सब के सामने अपने टीचर से कहता हूँ, चाहे उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया, मैं हमेशा इनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। जब भी इनको लगे कि इसकी ज़रूरत है हमें, चाहे वो एक चैरिटेबल वर्क हो, चाहे किसी भी अंदाज में, मैं हमेशा हाजिर हूँ इनके लिए। और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। Yes. So how can we pursue civil services by taking the academics into consideration? Please, can you speak louder? Speak up. So how we can pursue for civil services by taking the academics into the consideration? Yes. You have to manage your time. अगर आप एकेडमिक्स को कंसिडरेशन में ले रहे हो, कि अगर आप बोल रहे हो, जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन को समझा, क्या आप बोल रहे हो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, यहाँ से सिविल सर्विस की तैयारी भी करूँ, तो आपको अकॉर्डिंगली ये मैनेज करना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी गलती थी कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि उससे पहले सच बोलूँ मैं, पहले बोलता ना कोई मुझे बचपन का ड्रीम था, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक पता ही नहीं था सिविल सर्विस क्या होता था। तो मेरा ड्रीम कहाँ से बनता, मेरे ड्रीम बने सिविल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि जब मुझे पता चला, अगर आपको याद होगा जब भी कोई ऑफिसर आता था हम देखते भी नहीं थे, हम गांव के लोग होते हम देखते भी नहीं, ऑफिसर आया था हमें क्या पता है हमें क्या करना है उसको। लेकिन जब बाहर सिटीज़ में आते हैं, जब देखते हैं लोग चलते हैं, जब ऑफिस में देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, तो इंसान को इंस्पिरेशन मिलती है, तब स्टार्ट करता है। मेरा मानना ये कि जो ग्रेजुएशन करे अगर उसको सिविल सर्विस में आना है, उसका रियलिटी में ड्रीम है
ये नहीं कि वो मैं लक ट्राई करूँ अपना, मैं दूँ तो अगर हो जाएगा वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं SSB का कोई एग्ज़ाम करूँ तो आई एम सेटिस्फाइड इन दैट ऑल्सो। वो नहीं, जिसको डेफिनेटली करना है तो वो ग्रेजुएशन करे, उतना काफ़ी है, क्योंकि इसके लिए क्वालिफिकेशन ही है, बाकी इसी की तरफ पूरा ध्यान दें। आप एक काम करो, देखो अगर आपको लगता है आपको अभी बैचलर्स डिग्री हासिल करने में 2 साल या 3 साल अभी है, तो अकॉर्डिंगली आप हर दिन के कुछ घंटे निकालो जो आप डेडिकेटेडली सिविल सर्विस को दोगे। फॉर एग्जांपल आप रात को बैठो 11 से 1 तक, उसमें आप अपना एकेडमिक्स मत पढ़ो, उसमें आप अलग मटेरियल रखो, उसकी किताबें रखो अलग, अपना नोट्स अलग रखो। सिविल सर्विस करंट आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको 3 साल पहले करंट नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको न्यूज़पेपर ज़रूरी पढ़ना है कि आपको एक SNS डेवलप हो जाए वहाँ पे, तो आप आराम से कर सकते हो 3 साल। आपको ये प्लस पॉइंट है कि आप पहले से ही इन चीज़ों को समझ सकोगी, सीख सकोगी, तो यू विल बी अ बेटर स्टूडेंट और आप फर्स्ट गो में ही इंशाल्लाह हो जाओगे फिर। एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो माइंड सेट होता है वो स्टैटिक ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बैचलर्स करें या PG की बात है तो सबका माइंड स्टैटिक माइंड हो जाता है। अब्रप्टली ऐसे चेंज करना आप एक करंट अफेयर को, वो कैसे इंसान कर सकता है? मतलब इतनी जल्दी एक स्टैटिक माइंड चेंज करना करंट अफेयर की तरह। मतलब इसका मतलब ये मुझे लगता है कि आपने भी सिविल सर्विस को समझा नहीं है। जब हम बोलते हैं ना हमें जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, हम अलग नहीं कहते कि भाई हमें पॉलिटी पढ़नी है, हमें इकोनॉमी पढ़नी है, हमें जियोग्राफी पढ़नी है। हम बोलते हैं हमें जनरल स्टडीज़ पढ़ना है। ये बात भी मुझे सर ने सिखाई है। मैं बोलता हूँ ना जो भी मैं हूँ इसकी वजह से। अब सोचो, मैंने स्तूपा पढ़ा, किस में पढ़ा? हिस्ट्री में। और सर ने बोला था कहाँ कहाँ है, दैट मीन्स जियोग्राफिकल पॉइंट इसने लाया। कितने हुए? 2। ये किस तरह एक कल्चरल टूरिज़्म सेंटर, ये रिलीजियस टूरिज़्म सेंटर बने? वो इकानमी है। कितने हुए? 3। अब कहाँ से ये अलग है, कहाँ से ये स्टैटिक है? आपको पढ़ना है स्टैटिक कहाँ है। मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल रिसेंटली गवर्नर के रिलेटेड इश्यूज़ है। हमें रिसेंटली वुमेन की जो वोटिंग ये पार्लियामेंट सीट्स दिया, 33% रिजर्वेशन दी गई है उनको। रिजर्वेशन का कंसेप्ट वहाँ पे है पार्लियामेंट में ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आपने पढ़ा। अब किस तरह ये आप करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करोगे? वही तो सिविल सर्विस है। यहाँ करंट वरंट कुछ नहीं होता है, स्टैटिक पढ़ो, आपकी बेस बन जाएगी। आपको पता लगेगा फॉर एग्जांपल रिवोल्ट ऑफ 1857, आपको पता चला ये रिवोल्ट ऑफ 1857 ये ज़रूरी है, लेकिन आप उसको रिलेट करो आज के साथ कि हमें किन फोर्सेस, किन एविल फोर्सेस के साथ अपनी सोसाइटी में हमें लड़ना है कि हम अपनी सोसाइटी को इंक्लूसिव सोसाइटी बने। आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं जो आज भी डाउन ट्रॉडन है, अनटचेबल जिनको माना जाता है, उनके साथ बहुत जुल्म किया जाता है। आज भी हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं है, पोक्सो एक्ट होने के बावजूद भी हमारी बच्चियाँ सेफ़ नहीं है। आज भी हमारा माइंडसेट वही है। दैट मीन्स जब आप कोई स्टैटिक पढ़ोगे उसके साथ डेफिनेटली वो स्टैटिक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक बोला आप, मैं उसको आपको करंट के साथ लिंक करके दूंगा, कोई भी टॉपिक, क्योंकि ये हाँ स्टैटिक और करंट, स्टैटिक आपका बेस बनाती है, वो आपको एक रॉ मटेरियल देती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा मानो जब गाड़ी बनती है, गाड़ी आई वहाँ से, उसको बॉडी नहीं, आउटसाइड जो बॉडी होती है, जो डिज़ाइनर होती है, वो नहीं बनी होती है, लेकिन बेसिक इंजन जो है वो आपका GS है, जो आपने स्टैटिक पढ़ा है। उसके बाद अगर आपको उसको एक ग्रूम अप करना है तो वो करंट अफेयर से करोगे, तभी आप कहलोगे एक बेटर सिविल सर्वेंट। जी, एनीवन एल्स? यस। My question is that we know how to study and all. Yes. But the thing is, sometimes we get negativity from our inner self. Like we feel कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा. Although your family is supporting, although your teachers are supporting, although they flourish you, But the thing is, when you get the negativity from inside, how to tackle with that? How to stay loyal to yourself? I just want to know that.
मैम, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ था, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें खुदा के पास जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज़ दिस। दूसरा, खुली आंखों से ख्वाब देखो बस। इसका मतलब ये है, जब भी मैं थकता था मुझे टीयर्स खुद आते थे। मैं सोचता था खुदाया, मतलब मुझे अब हिम्मत नहीं है, तो मैं आंखें बंद करके सोचता था एक IAS ऑफिसर या KS ऑफिसर को आते हुए, एक DSP को चलते हुए, उसके पीछे बहुत लोग। मैं सोचता नहीं, ये मुझे हिम्मत देता था, मुझे भी करना है। यही या खुली आंखों से ख्वाब देखो। ये नहीं कि आप सो जाओगे फिर ख्वाब देखो। आप थक गए ना, रेस्ट किया थोड़ा, आंखें बंद रखो, ख्वाब देखो। अगर मुझे बनना है, इसके लिए कुछ करना है, मेहनत करनी है इसके लिए, ये मोटिवेशन है। ये चीज़ें नेगेटिविटी को बाहर रखती है। और अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखो। अगर सपोर्टिव भी नहीं है, क्योंकि उनका भी खता नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी को इलिटरेट भी पेरेंट्स होते हैं, हमें उस चीज़ को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका खता भी नहीं है। और मैं कभी कभी बोलता हूँ, जब हमें ज़मीन पे जाना होता था, हमें ज़मीन कम है, लेकिन जब भी जाते थे मैं माँ को बोलता मुझे पढ़ना है। बोलते तू तो हर दिन पढ़ता है, तुझे क्या काम होता है, तू बैठ के होता है। उसको पता ही नहीं था कि इसमें भी इंसान थकता है। वो बोलते कश्मीर में बोल सच वना मैं, अगर बासान चे पर पढ़म बहाना मार्क्स भूर। तो मुझे उस चीज़ से मतलब सोचना है, मुझे मैं उसको क्या ब्लेम करूँ कि उसने मुझे केयर नहीं किया सिविल सर्विस में। उस बेचारे को जब पता ही नहीं है। मुझे अपने ख़ानदान का तकदीर बदलना था, मुझे अपनी सोसाइटी के लिए करना था कुछ, मुझे अपने कौम के लिए करना है कुछ। ये मेरे अंदर की फीलिंग थी और मैंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। वट एवर जो मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा, जो मुझे विद इन द प्रोग्रेटिव ऑफ लॉ लगा, मैंने वो किया। तो आप भी अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए खुदा के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाओ और ख्वाब खुली आंखों से देखो, इंशाल्लाह आप लोग भी हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू बोथ ऑफ यू। आप यहाँ आए, आपने हमें टाइम दिया। हमारे लिए बहुत रिच एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही यूनिक स्टोरी सुनने को मिली। आई बिलीव कि दिस हैज़ बीन द फर्स्ट इंटरेक्शन जो इस लेवल पे ऑनेस्ट इंटरेक्शन रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। और थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट विद अस। और उसी के साथ साथ आई ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर एस्टीम्ड फैकल्टी फॉर गिविंग अस सच टाइम। रूहान सर है यहाँ पर, और मोमिन सर है, फहद सर है, कारिफ सर है। दो और टीचर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है इनकी सिलेक्शन के लिए, दाऊद सर और हमारे मोमिन सर। अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट मेक इट, बट दे वुड मेक इट टू सम टाइम, हाँ इंशाल्लाह। और हमारे कारिफ सर का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें, तो आई वुड लाइक टू थैंक हिम ऑल्सो फॉर गिविंग अस सम टाइम। As we finish today, I hope this seminar has given each of you new motivation to follow your dreams. Let's take what we've learned here and use it to work towards success. Remember, the path may be tough, but with hard work and determination, we can achieve great things. Thank you, and I wish you all the best as you step forward towards success.